پاکستان میں ہونے والا ریسلنگ کی دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ کون سا تھا جب لاہور کے اکھاڑے کا ایک پہلوان اپنے خاندان کا نام بچانے رنگ میں اترا اور ایک دوسری دنیا کے فری سٹائل ریسلر نے اس کا چیلنج قبول کیا۔ یہ دو دنیاؤں کی لڑائی تھی جب انوکی اور جھارے کا دنگل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوا۔ کشتی کی دنیا کا یہ سب سے بڑا مقابلہ کیسے متنازع ہوا اور کس دنیا نے دوسری دنیا کو اس دنگل میں چت کر دیا، جانیے اس ویڈیو میں۔ کشتی کی دنیا نے ویسے تو بڑے بڑے مقابلے دیکھے ہیں اور کئی مقابلوں کے ساتھ بہت قصے جڑے ہیں، لیکن جھارے اور انوکی کا مقابلہ شاید کشتی کا پاکستان میں ہونے والا اب تک سب سے بڑا اور مشہور مقابلہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ پاکستان میں پہلوانی کا سنہری دور یا گولڈن ایرا تھا، اور دوسری طرف دنیا میں فری سٹائل ریسلنگ بھی لوگوں میں بے حد مقبول ہو رہی تھی۔ انوکی ایک جاپانیز ریسلر تھا اور فری سٹائل ریسلنگ کے ساتھ ساتھ وہ ایک مکسڈ مارشل آرٹس کا بھی ماہر تھا۔ وہ جاپان میں تو کافی مشہور تھا، لیکن اسے دنیا میں شہرت اس وقت ملی جب اس نے 1976 میں باکسنگ لیجنڈ محمد علی کے ساتھ ایک مقابلہ کیا اور اسے صدی کا سب سے بڑا مقابلہ قرار دیا گیا۔ 15 راؤنڈز تک جاری رہنے والا یہ مقابلہ برابر ہاتھ تھا، لیکن اسے جدید مکس مارشل آرٹس کی بنیاد ڈالنے والا مقابلہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ مقابلہ 26 جون 1976 کو ہوا تھا اور اس مقابلے کے لیے ریسلنگ کے رولز کو بھی تبدیل کیا گیا تھا، لیکن یہ ایک ایسا میچ تھا جو محمد علی کے ہسپتال جانے پر ختم ہوا، اور اس میچ کی شہرت کے بعد کراس اوور باکسنگ اور اس کے ساتھ جو آنے والی انکم ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور انوکی اب ایسے مقابلوں کی تلاش میں تھا اور اس کی نظریں پاکستان اور بھارت کے پہلوانوں پر تھیں۔ زبیر عرف جھارا ایک مشہور پہلوان خاندان سے تعلق رکھتا تھا جسے سب بھولو خاندان کے نام سے جانتے تھے۔ بھولو برادران میں سب سے بڑے پہلوان منظور حسین تھے، جنہیں دنیا رستم زماں بھولو پہلوان کے نام سے جانتی تھی۔ بھولو خاندان کا تعلق برصغیر میں پہلوانوں کے ایک مشہور سلسلے سے تھا۔ بھولو پہلوان کے والد امام بخش اپنے دور کے تگڑے پہلوان تھے اور رستم ہند کے طور پر مشہور تھے۔ ان کے بڑے بھائی غلام حسین تھے جو دنیا بھر میں گاما پہلوان کے نام سے مشہور ہوئے۔ گاما پہلوان بھولو پہلوان کے تایا اور سسر تھے جنہوں نے پورے ہندوستان میں کشتیاں لڑی، اور ان کے مقابلے پر کوئی بھی پہلوان ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس خاندان کے لیے عالمی ریسلرز کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ گاما پہلوان کی وجہ شہرت بھی وہ کشتی تھی جو انہوں نے پولینڈ کے ایک ریسلر زبسکو سے 2 بار لڑی اور دونوں بار اسے چت کیا۔ ستمبر 1910 میں ہونے والی پہلی کشتی کا احوال بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جب گاما پہلوان لندن پہنچا تو اسے کسی نے اہمیت نہ دی اور اسے دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کا جو مقابلہ تھا اس میں شرکت کی اجازت تک نہ ملی، جس کے بعد اس نے تھیٹر کے باہر ایک رنگ لگا لیا اور تمام پہلوانوں کو چیلنج کر دیا کہ جو بھی پہلوان اسے ہرائے گا وہ اسے 5 پاؤنڈ انعام دیں گے، لیکن کوئی بھی اسے ہرا نہ سکا۔ وہاں عالمی مقابلے میں حصہ لینے والے جب 8 پہلوانوں کو گامے نے ہرا دیا تو پھر گاما پہلوان کا مقابلہ زبسکو سے ہوا۔ زبسکو کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی ہار یقینی ہے اور اس نے شکست سے بچنے کے لیے رنگ میں مختلف حرکتیں شروع کر دی، یہاں تک کہ ریفری کو کئی بار زبسکو کو وارننگ بھی دینی پڑی۔ آخرکار زبسکو نے یہ مقابلہ کینسل کرنے کی درخواست کر دی، لیکن چند روز بعد جب دوبارہ مقابلے کا وقت آیا تو زبسکو اکھاڑے میں ہی نہیں آیا، لہٰذا آرگنائزرز نے گاما پہلوان کو فاتح قرار دے کر ورلڈ چیمپئن شپ کی بیلٹ انہیں پیش کر دی۔ گاما پہلوان اور زبسکو کے درمیان دوسرا مقابلہ 1928 میں انڈیا کے شہر پٹیالہ میں ہوا تھا، اور اس مقابلے میں گاما نے زبسکو کو چند سیکنڈز میں ہی پچھاڑ دیا تھا۔ بھولو پہلوان کی روایت کو ان کے بھائیوں نے آگے بڑھایا، جن میں حسین عرف حسو پہلوان، اسلم پہلوان،
अकरम पहलवान, आजम पहलवान और मुअज्जम उर्फ गोगा पहलवान शामिल थे। इस खानदान की तीसरी नस्ल थी जिसमें भोलू पहलवान के बेटे नासिर भोलू और असलम पहलवान के बेटे जुबैर उर्फ झारा थे। जुबैर उर्फ झारा 1960 में पैदा हुआ था। उसका वालिद अच्छा पहलवान रुस्तम हिंद इमाम बख्श का बेटा था और वालिदा यासीन पहलवान की बहन थी। लाहौर के मोहनी रोड के अखाड़े की मट्टी में पहलवानी के दाव पेच सीखता वो बड़ा हुआ था। 1975 में नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने फ़न पहलवानी की रवायात और इस ट्रेडिशन को अपना सब्जेक्ट बनाया, तो इस एडिशन में बरसगीर के दीगर नामवर पहलवानों के साथ नौजवान झारे पहलवान का नाम भी शामिल था। झारे और अनोखी की कुश्ती से पहले एक और कुश्ती का जिक्र करना जरूरी है ताकि पता चल सके कि अनोखी झारे के साथ इस कुश्ती के लिए क्यों आया और कैसे ये मैच हुआ। झारे का चाचा अकरम पहलवान उर्फ अक्की था। अकरम अपने वक्त का और इस खानदान का मशहूर पहलवान था और वो कई आलमी कुश्तियां लड़ चुका था। अकरम पहलवान ने युगांडा के सदर इदी अमीन को भी हराया था। इदी अमीन सदर बनने से पहले एक रेसलर था और युगांडा का सबसे ताकतवर पहलवान भी था। अनोखी और बॉक्सर मोहम्मद अली के दरमियान होने वाले मुकाबले के बाद अकरम ने अनोखी को लड़ने का चैलेंज दे दिया और उसने ये चैलेंज कबूल भी कर लिया। जब मुकाबले का ऐलान हुआ तो उसके बाद अकरम बीमार हो गया। उसे शुगर थी और उसकी शुगर खतरनाक हद तक बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद उसने ये मैच मनसूख नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करना उसकी खानदानी रवायात के खिलाफ होगा। वो इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए मुकम्मल फिट ना होने के बावजूद उसने रिंग में उतरने का फैसला कर लिया। ये मैच नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ था। 12 दिसंबर 1976 को अकरम पहलवान जब नेशनल स्टेडियम कराची में जापानी पहलवान अनोखी से मुकाबले के लिए रिंग में उतरा तो उसके हज़ारों फैंस जो वहाँ पर मौजूद थे वो सिर्फ उस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे कि अकरम पहलवान एक ही दाव में अनोखी को चित कर देगा। अकरम बीमार था लेकिन इस मैच को फिर भी तीसरे राउंड तक ले जाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका और अनोखी का कोई जोड़ नहीं था। अनोखी जवान था, फिट था, 33 साल का था और अकरम की उम्र उस वक्त 43 साल थी। तीसरे राउंड के दूसरे मिनट में जब अनोखी ने आर्म लॉक लगाया तो अकरम को बचकर निकलने का मौका नहीं मिला, उसका कंधा उतर गया। इसी दौरान अकरम के कॉर्नर से उसके भाई और दीगर साथी रिंग में दाखिल हो गए और अनोखी ने हाथ फिजा में बुलंद करके अपनी जीत का ऐलान कर दिया। इसके बाद वो शायकीन की तरफ हाथ लहराते हुए रिंग से चला गया। ये मैच पाकिस्तान टेलीविजन पर लाइव दिखाया गया था। यूं गामा पहलवान के ख़ानदान और इमाम बख्श के बेटे अकरम पहलवान उर्फ अक्की के लिए ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। अकरम पहलवान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 4 दंगल हारा था और अनोखी से होने वाली ये कुश्ती अकरम पहलवान के करियर का आखिरी मुकाबला साबित हुई। अब भोलू पहलवान के खानदान ने अनोखी से शिकस्त का हिसाब बराबर करने के लिए सर जोड़ लिए और अपनी अगली नस्ल से पहलवान की तलाश शुरू कर दी और ये काम अकरम यानी अक्की के ही हवाले किया गया। अक्की पहलवान की पहली चॉइस गोगा पहलवान बना, लेकिन भोलू के वालिद इमाम बख्श ने 1977 में अपनी वफात से पहले उसे जुबैर को तैयार करने का मशवरा दिया। यूं उसका सारा फोकस अब अपने भतीजे जुबैर की तरफ हो गया। जुबैर उर्फ झारा पहले से ही अपने ख़ानदान की नज़रों में था और पूरे ख़ानदान को उससे बहुत सी उम्मीदें थीं। बचपन में भोलू पहलवान जुबैर को एक दफ़ा अपने साथ कराची ले गया। हैदरी चौक के अखाड़े में वो पहलवानी के जौहर तो दिखाता ही रहा, लेकिन इंटरेस्टिंगली झारे ने अपनी कुव्वत और महारत का पहला मुजाहरा रेसलिंग के बजाय बॉक्सिंग में किया। हैदरी अखाड़े के करीब उस्ताद जानू मकरानी का एक बॉक्सिंग क्लब था। एक दफ़ा ली मार्केट नागपुरा में बॉक्सिंग के एक मुकाबले में भोलू को बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया गया तो झारा भी उसके साथ चला गया। यहाँ उसने महज अपने शौक के लिए बॉक्सिंग के मुकाबले में हिस्सा ले लिया। देखने वाले उस वक्त हैरान रह गए जब उसने वहाँ बॉक्सर्स की दुर्गत बनाना शुरू कर दी और उन्हें अपने मुक्कों से घराना शुरू कर दिया। झारा वो कुश्ती भी देख चुका था जब अनोखी ने उसके चचा को ज़ेर किया था और उस दिन वो रिंग में मौजूद था जब अनोखी ने अकरम को हराया था। यूं खानदान की इज्जत बहाल करना अब झारे की जिम्मेदारी बन गई थी। 16 जून 1978 को उसने अनोखी को दुनिया में किसी भी जगह मुकाबले का चैलेंज दे दिया। साथ ही जीत की सूरत में अनोखी को 5 लाख रुपए इनाम की पेशकश भी कर दी।
उस जमाने में पहलवानों के मुकाबले प्रमोटर्स के जरिए होते थे। पाकिस्तान में फहीमुद्दीन देसी कुश्तियों और सलीम सादिक फ्री स्टाइल रेसलिंग के प्रमोटर थे। झारे और अनोखी के दंगल के लिए लाहौर से इरशाद बिजली पहलवान, बिल्ला धोबी पटियावाला और यासीन पहलवान एक डेलीगेशन बनाकर मुकाबले की डिटेल्स तय करने प्रमोटर सादिक के पास कराची पहुंचे। उसने पहली शर्त यह आयद की कि अनोखी और झारे की कुश्ती के अगले दिन कराची में ही भारत के पहलवान अजित सिंह और अनोखी का भी मुकाबला होगा और दंगल की तमाम आमदनी सादिक की होगी। भोलू बिरादरान तो गुज़िश्ता शिकस्त का दाग धोना चाहते थे, इसलिए उनके लाहौरी डेलीगेशन ने प्रमोटर की तमाम शराइत मान ली और यहीं से उस मामले का आगाज हुआ जिसने मुकाबले के नताइज को कंट्रोवर्शियल कर दिया। अनोखी के एग्रीमेंट के बाद झारे ने भी तैयारियां शुरू कर दी। पहलवानी की तारीख लिखने वालों का यह कहना है कि मोहनी रोड वाले अखाड़े में जोर देखने वालों का शौक इतना था कि वो दरख्तों पर चढ़कर झारे की तैयारियों और उसके जोर को देखते थे। फिर मोहनी रोड वाला अखाड़ा तमाशाइयों के लिए तंग पड़ गया, तो फिर ये फैसला हुआ कि झारे के जोर रावी पार फर्रुखाबाद वाले पुराने अखाड़े में हुआ करेंगे। बरे सगीर के नामवर पहलवान घरानों के तज़किरों पर मुश्तमिल अख्तर हुसैन शेख ने किताब लिखी है और इसका नाम है दास्तान शहज़ोरा। इसमें उन्होंने इस मुकाबले के लिए झारे की तैयारियों की बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताई हैं। अकरम पहलवान उर्फ अक्की उसे इस मुकाबले के लिए तैयारी करवा रहा था। झारे को अखाड़े तक पहुंचने और वापसी के लिए रावी को तैर कर स्विम करके क्रॉस करने को ऑर्डर था और उसे रात 2 बजे उठा दिया जाता था। नमाज के बाद वो 3000 बैठकें लगाता, फिर फर्रुखाबाद से शाही किले लाहौर तक दौड़ लगाता। आधे घंटे में वो अखाड़े की गोडी करके उसे तैयार करता और फिर 2000 डंड निकालता था। इससे फारुग होने के बाद 2 हट्टे कट्टे पहलवान उसकी पीठ पर सवार हो जाते और वो भागता हुआ उन्हें रावी पुल छोड़कर वापस आता। झारे की खुराक के मुतालिक अख्तर हुसैन शेख ने लिखा है कि वो 2 किलो गोश्त, 3 किलो गोश्त की यखनी, 2 किलो दूध और फलों का जूस पीता था और फिर 2 किलो बादाम की सद्दाई, डंड निकालने के दौरान चांदी के वर्क, सच्चे मोती और छोटी इलायची का मुरक्कब आधा किलो मक्खन के साथ खाता था। मुकाबले से 2 दिन पहले अनोखी पहलवान पिंडी के रास्ते लाहौर पहुंच गया। 15 जून को दोनों ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मुकाबले के बारे में अपनी स्ट्रेटजी बताई। झारे ने दावा किया कि वो तीसरे राउंड में अपने मुखालिफ को शिकस्त दे देगा, जबकि अनोखी का यह कहना था कि वो जुबैर के साथ राउंड्स की बजाय अपनी स्ट्रेंथ यानी कुव्वत की बुनियाद पर कुश्ती लड़ेगा। 17 जून की शाम ढलने तक 40,000 तमाशाई गद्दाफी स्टेडियम में दाखिल हो चुके थे और हजारों उसके बाहर मौजूद थे। उस जमाने में इस कुश्ती का टिकट 100 रुपए रखा गया था, जो बड़ी ठीक ठाक रकम थी। ये कम से कम टिकट था और ये तब की बात है जिस जमाने में क्रिकेट मैच की टिकट 10 रुपए होती थी। झारा भोलू पहलवान की क़यादत में एक जुलूस की सूरत में स्टेडियम में दाखिल हुआ। उसने सर पर पगड़ी और सुर्ख गाउन पहना हुआ था जिस पर पाकिस्तान लिखा हुआ था। अनोखी ने भी एक रेड कलर का गाउन पहन रखा था। मुकाबले के रेफरी पोलैंड से थे। जजेस में ख्वाजा असलम और अनोखी का मैनेजर मिस्टर शीमा शामिल थे। यह मुकाबला 6 राउंड्स का होना था और हर राउंड की ड्यूरेशन 5 मिनट थी। झारा जब रिंग में उतरा तो अपने खानदान की शिकस्त का बदला लेने के लिए बेचैन नजर आ रहा था। झारा अब 3 साल पहले वाला झारा नहीं था, वो एक भरपूर रेसलर बन चुका था। ट्रेनिंग के बाद उसका बदन जैसे लोहे का बन चुका था और उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन पर अनोखी भी हैरान था। दास्तान शहज़ोरा में इस मुकाबले की जो तफसील है वो बड़ी डिटेल के साथ बयान की गई है। पहले राउंड में अनोखी ने अपना सारा तजर्बा इस्तेमाल करते हुए झारे की गर्दन पकड़ ली। झारे ने बगलों में से हाथ देकर फट्टी मारी और अनोखी उड़ता हुआ रिंग के गिर्द जो रस्से लगे हुए थे उन पर जाके गिरा। फिर अनोखी ने झारे की गर्दन पर लॉक लगा दिया। झारा इस दाव के लिए भी तैयार था। उसने अनोखी का लॉक तोड़ डाला। एक मौके पर झारे ने जोर लगाकर अनोखी के दोनों कंधे जमीन पर लगा दिए। अब रेफरी को 3 तक गिरना था, लेकिन दूसरी थपकी से पहले ही अनोखी झारे के हाथ से निकल गया। उम्र का फर्क इस दंगल में झारे की फेवर में था। जो अकरम के साथ पिछली कुश्ती में हुआ था वो इस दंगल में अनोखी के साथ हो रहा था। अगले 4 राउंड्स में दोनों पहलवानों ने एक दूसरे को चित करने के लिए जान तोड़ कोशिश की। एक मौके पर झारे ने फट्टी मारकर हरीफ को रिंग से बाहर फेंक दिया। इसी तरह अनोखी ने झारे का बाजू पकड़ा और उसे बल देकर आर्म लॉक लगाने की कोशिश की, लेकिन झारे ने झटका देकर अपना बाजू छुड़वा लिया।
तीसरे राउंड में एक मौके पर अनोखी की गर्दन झारे की लपेट में आ गई तो रेफरी ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हो। इस पर अनोखी ने इनकार में जवाब दिया। झारे ने गर्दन छोड़कर उसके दोनों कंधे जमीन पर लगा दिए, लेकिन 3 वाली गिनती पूरी होने से पहले वो उठकर खड़ा हो गया। मुकाबले के 5वें राउंड के इख्तिताम की घंटी बजी। लोग अगले और फैसला कुन राउंड के मुंतजिर थे। दोनों पहलवान अपनी जगहों पर खड़े हुए कि छठे राउंड का आगाज हो। झारा उस वक्त हशाश बशाश उछल कर खड़ा हुआ, लेकिन अनोखी थके थके कदमों से चलता हुआ रेफरी के करीब आया। उसके मुंह से आई एम फिनिश्ड के अल्फाज निकले। साथ ही उसने झारे का हाथ पकड़कर फिजा में बुलंद कर दिया। जो काम रेफरी को करना चाहिए था वो अनोखी पहलवान ने कर दिया। बज़ाहिर ये फतह का ऐलान था। शायकीन ने इसे जुबैर की जीत का ऐलान समझकर नारे और भंगड़े शुरू कर दिए। हर तरफ शोर मच गया कि झारे ने मैदान मार लिया है। लेकिन जब जश्न जरा थमा तो मुंतजमीन और पहलवानों के जो करीबी हलके थे उनमें मुकाबले के बराबर होने की बातें और सरगोशियां होने लगी। कहते हैं कि मैच का प्रमोटर मैच की बराबरी की बातें करने वालों में सबसे पेश था। इस बदलती सूरत हाल में झारे का चाचा भोलू पहलवान उसे फिर से अखाड़े में ले आया। 20 मिनट तक रिंग में वो अपने मुखालिफ को दोबारा लड़ने की दावत देता रहा। उधर इस टाइम में अनोखी स्टेडियम से वापस अपने होटल पहुंच गया। रेसलिंग के इस आलमी मुकाबले के नताइज अब मुतनाज़ हो चुके थे। अगले रोज कौमी अखबारात में झारे की जीत की खबरें हेडलाइंस में छपी। साथ ही खबरों की डिटेल में इस मुकाबले में होने वाले कंट्रोवर्सी और रिजल्ट के बारे में जजेस के इख्तलाफ का जिक्र भी मौजूद था। अख्तर हुसैन शेख के मुताबिक रेफरी बर्नार्ड का यह कहना था कि उसके ख्याल में झारा मुकम्मल तौर पर इस कुश्ती में हावी रहने की वजह से जीत चुका था। 2 जजों में से एक जज ख्वाजा असलम ने झारे की जीत, जबकि जापानी जज ने मुकाबला बराबर होने का ऐलान कर दिया। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि अनोखी ने मुखालिफ का हाथ क्यों बुलंद किया, हर तरह की कुश्ती में जीत का ऐलान हाथ बुलंद करके किया जाता है, तो इसका जवाब ना तो अनोखी के पास था और ना ही उसके मैनेजर के पास। दास्तान शाहज़ोरा के राइटर के मुताबिक यहाँ प्रमोटर का रोल बड़ा कंट्रोवर्शियल था। उसने अगले दिन कराची में अजित और अनोखी का दंगल कराना था और वो उसे बचाना चाहता था। अगर झारा इस तरह से जीत जाता तो वहां कोई ना आता। लिहाजा प्रमोटर ने होटल पहुंचते ही कहा कि अनोखी ने झारे का हाथ तो महज उसका हौसला बढ़ाने के लिए बुलंद किया था। मुकाबले का एक जज झारे को फातेह करार दे रहा था, लेकिन प्रमोटर मुकाबले की बराबरी पर इसरार करता रहा। उसकी देखा देखी अनोखी के मैनेजर ने भी यही लाइन पकड़ ली कि हाथ बुलंद करने का मतलब हौसला अफजाई था। मुकाबले से एक रोज पहले रोजनामा जंग में अनोखी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील में उसकी जुबानी मुकाबले की जो डिटेल्स थी और रूल्स रिपोर्ट हुए, जिसमें अनोखी ने कहा था कि जब तक इस दंगल का फैसला नहीं हो जाता ये बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। अखबार के मुताबिक अनोखी ने यह कहा कि यह दुरुस्त है कि बैनुल अक़वामी जो रूल्स हैं उनके तहत 5-5 मिनट के 6 राउंड्स होने चाहिए, और अगर 6 राउंड्स में भी फैसला ना हुआ तो 10 मिनट का एक आखिरी राउंड होगा, और अगर फिर भी फैसला ना हुआ तो जो हार जीत है उसका फैसला टॉस के जरिए किया जाएगा। इस तमाम हंगामे का नतीजा ये हुआ कि इस बड़े दंगल के बारे में नूरा कुश्ती की अफवाह फैल गई। इस पर कुछ संजीदा लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा हुआ कि अगर नूरा कुश्ती ही करनी थी तो झारा पहलवान को इतनी ज़बरदस्त तैयारी करने की क्या ज़रूरत थी। यही बात भोलू पहलवान ने भी की, लेकिन झारे की जीत में अब शक का बीज बो दिया गया था। अगले रोज़ झारे पहलवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई कि कद्दाफी स्टेडियम वाली कुश्ती नूरा नहीं थी। अनोखी ने भी इसकी तायद की कि ये नूरा कुश्ती नहीं थी, लेकिन लोग बातें करते रहे। झारा नौजवान था और जज्बाती था। उसने इस दंगल में जान लड़ा दी थी और सख्त मेहनत की थी। वो ये दंगल अपने ख़ानदान के लिए लड़ा था, लेकिन इन बातों ने जैसे उसका दिल तोड़ कर रख दिया हो। वो फतह जो उसकी थी उसे नहीं दी जा रही थी। इसके बाद अनोखी तो पाकिस्तान से चला गया, लेकिन झारे ने तो यहाँ रहना था और इन बातों और इन लोगों के साथ रहना था। इस कुश्ती के बाद होने वाली इन बातों ने झारे को बदल कर रख दिया। उसका इंतकाल सिर्फ 30 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वो पहलवान तो था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि वो मेंटली भी
उतना ही स्ट्रांग होता। कहते हैं इस लड़ाई के बाद जैसे वो मुरझा सा गया था। अनोकी ने रेसलिंग के बाद सियासत में कदम रखा। उसने जापानीज़ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, फिर जीता। फिर इसके बाद वो एक मरतबा इराक़ गया और इसने उस दौरे के दौरान ही इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम मोहम्मद हुसैन अनोकी कर लिया। 2012 में उसने पाकिस्तान का दौरा भी किया, जिसमें वो अपने साथ कई जापानीज़ रेसलर्स को लेकर आया जिन्होंने लाहौर और पेशावर में रेसलिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया। इसी दौरे में उसने लाहौर में अकरम पहलवान और झारे पहलवान की कब्रों पर हाजिरी भी दी और फातह खानी भी की। बाद में अनोकी झारे पहलवान के भतीजे और असलम पहलवान के पोते हारून आबिद को अपने साथ जापान ले गया ताकि वो वहाँ तालीम हासिल करने के साथ साथ पहलवानी की तरबियत भी हासिल कर सके, क्योंकि इसका वादा उसने झारे से किया था। अनोकी की वफ़ात 2022 में हुई। ये कुश्ती दो मुख्तलिफ दुनियाओं से ताल्लुक़ रखने वालों की लड़ाई तो थी, लेकिन ये दंगल इन दोनों रेसलर्स को रेसलिंग की तारीख़ में अमर कर गया। इन दोनों दुनियाओं को मिलाने वाली जो स्पोर्ट थी वो पहलवानी ही थी, और इस खेल ने पूरे पाकिस्तान की नज़रें उस रिंग पर जमा दी जिसमें झारे और अनोकी का मुकाबला हुआ। अब पाकिस्तान में ना तो वो पहलवान हैं और ना ही कुश्ती में वो इंटरेस्ट है। बाहर मुल्कों में तो कई और अनोकी आए, लेकिन पाकिस्तान में इसके बाद ना तो कोई झारा आया और ना ही कोई अक्की। इसलिए यहाँ सियासी दंगल तो बहुत होते हैं, रोज़ाना होते हैं, लेकिन असल पहलवानों का ऐसा दंगल 1979 के बाद देखने को नहीं मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।